So as usual, what we will do, we'll first go through the list of formulas that we have, because a formula centric chapter. So starting with a recap, voltage is always given by work upon charge, current is given as charge upon time. Then we went with Ohm's law, V upon I is equal to R. After that we got to resistivity, R is equal to rho L upon A, and now we are at R equivalent for a series is given by R1 plus R2 plus dot dot Rn till this much. And what we had learned was that in a series connection the voltage gets distributed, however the current always remains the same. ये इतना याद रखिए, ये याद नहीं रखेंगे तो जब आप सर्किट एनालिसिस करेंगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. In a series connection the voltage gets distributed. Series is like the Diwali lights, current remains constant. Current is like water, unless कोई रास्ता मिलेगा करंट डिस्ट्रीब्यूट होने के कोई चांसेस होते ही नहीं है. तो चलिए आज हम क्या करेंगे. यस, what is the R equivalent, this we had done in last class. I am just revising. R equivalent in series. This yeah, this is resistivity. R equal to rho L upon A. ये हमने last class में किया था. This rho is known as resistivity. हाँ, this is rho. ठीक है, तो इनको अभी मिटाते हैं और चलते हैं आज के क्लास में, जहां हम शुरू करेंगे about parallel connection. Right, so now our job today is to see the equivalent resistance for a parallel setup. आइए देखते हैं parallel setup बना के and what is the equivalent resistance. Okay, so let us do a parallel setup. So I'm taking say 3 resistances, and in parallel I told you it's like children go to the assembly. So in parallel we join all ends to ends, and I'm feeding this circuit with a potential difference source which is giving me V voltage out here. ठीक है, ये है मेरा रेजिस्टेंस R1, ये है R2 और ये है R3. समझ के चलेंगे. ये सर्किट में अब करंट क्या फ्लो कर रहा है, I. देखो I यहां तक I आएगा, इसके बाद I को प्रॉब्लम आना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं जाने के लिए. तो अब I डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहाँ पे I1 करंट जाएगा, यहाँ पे I2 करंट जाएगा और यहाँ पे I3. और फिर देखिए अच्छी चीज को, यहां से और कोई चेंज ओवर नहीं है, यानी कि इस रेजिस्टेंस से भी जब गुजरेगा यहां भी करंट कितना रहेगा, I3 रहेगा, यहाँ पे I2 रहेगा, यहाँ पे I1 रहेगा. तीनों फिर मिलने के बाद फिर I बन जाएंगे, क्योंकि I had split into I1, I2, I3, so all of them combined becomes I. Have you understood? But since this is a parallel connection, the good thing is the voltage in all the branches will remain as V. The voltage does not get distributed. So let us write first. In a parallel, voltage remains constant. ठीक है, और करंट जो है, करंट gets distributed. Current gets distributed. So now what we are trying to do here is that हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सब तामझाम ना रख के, अगर इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है ना. ये है हमारी, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड गेट दैट. एंड दिस अ वेरी सिंपल डिडक्शन. इसको हम कैसे शुरू करेंगे, हम फिर I से शुरू करेंगे. I करंट इज गिवन बाय I1 plus I2 plus I3. ओके, ईच I1 के लिए यहां पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. ठीक है, I1 इज फॉर R1, तो कैसा रहेगा, V अपॉन I1 should be equal to R1. उसी तरह V upon I2 should be equal to R2, and V upon I3 should be equal to R3. Have you understood this? For each resistance you can apply Ohm's law, right? Is this clear? चले फिर, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V by R1. I2 की वैल्यू
V बाई R2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी V बाई R3। तो ऐसे करके और भी रेजिस्टेंसेस लगा देते थे तो IN तक हो जाता था। हमने तो 3 दिखाया तो ये क्या हो जाता था V अपॉन RN हो जाता। क्लियर? यहां से हम V को कॉमन ले सकते हैं, तो V को कॉमन लेने से 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 और ऐसे करके 1 अपॉन RN, और इस साइड में क्या है I है। अब हमने यहां को V को यहां ले आया, देखो बेटा V अपॉन I इज इक्वल टू R है ना, तो इस बार क्या हो जाएगा I अपॉन V हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R। क्लियर? So if you bring on this side, it becomes I by V, which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 dot 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 plus 1 by Rn. Is this understood? So what is this I upon V? The I upon V is nothing but a relation which is 1 upon R, and this R is what? This is the total resistance of the circuit. So this is the R equivalent for a parallel circuit, which is given by 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 1 by Rn, and this is the formula to find the equivalent resistance for a parallel circuit. इतना लिख लीजिए, इसको और सुंदर से और भी कुछ पढ़ेंगे। तो सीरीज में क्या होता था, R equivalent is R1 plus R2 till Rn, पैरेलल में होता है 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 to 1 by Rn। ये कॉपी कीजिए, ठीक से लिख लीजिए, और जब आपका हो जाए तो बोलिए, इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे। You understood how the deduction happens? I equal to I1 plus I2, उसमें हमने कैसे किया था, V equal to V1 plus V2, बस। उसके बाद ये I1 I2 को खोलो, उधर V1 V2 को खोलो, उधर आ गया था V by I, इधर आ गया I by V, I by V बोले तो 1 by R। हो गया? Anyone? चलें? ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं पहले, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सीरीज और यहाँ पे देखते हैं पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल और ये सीरीज। मजेदार चीज देखो, मैंने दो रेजिस्टेंसेस लिए हैं। मैंने R1 को लिया है मान लो 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस, और R2 को लिया है 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इनकी ब्यूटी क्या है, अगर मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करता तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 200 ओम, और अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 50 ओम। कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है ना, ये शायद कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो 1 by R equivalent is equal to 1 upon 100 plus 1 upon 100। LCM will be how much, 100। टॉप में कितना हो जाएगा, 1 plus 1 2, 1 plus 1 2 हो जाएगा, तो इसको पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 by 2, यानी कि कितना हो जाएगा 50। अब इसी खूबसूरती समझिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपके पास आपको 50 ओम्स रेजिस्टेंस चाहिए, और आपके पास 50 ओम्स रेजिस्टेंस नहीं है, और आपके पास दो 100 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो 50 कैसे पैदा करेंगे, उन दोनों 100 को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, इट विल गिव यू 100 ओम्स। दिस इज व्हाट वी कंटिन्यूअसली डू, वी डोंट गेट एवरी रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट, यू हैव टू गो बाय कॉम्बिनेशंस। और अगर आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसा हो जाता है। तो इसमें से एक चीज पता चला कि अगर हम सीरीज में कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। इतना समझ में आया। तो किसी भी सीरीज नेटवर्क में ओवरऑल रेजिस्टेंस shoots up, right? And in a parallel the overall resistance comes down। सीधी सी बात। हमने, और आपको अगर डायग्राम में चाहिए तो हम दिखा देते हैं।
यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट किया था दोनों को, ये था हमारा 100 ओम और ये भी था 100 ओम। और यहाँ कैसे कनेक्ट किया, यहाँ हमने इस तरह से कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया था दोनों को पैरेलल। तो ये हमारा 100 ओम्स और ये हमारा 100 ओम्स। जो हमने अभी वर्कआउट किया उसका मतलब है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर, जो इक्विवेलेंट मिला वो मिला 50 ओम्स। और यहाँ अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ हमें मिला 200 ओम्स। इतना चीज समझ में आया आपको, राइट? अच्छा, दूसरा एक पर्सपेक्टिव चेंज चाहिए आपको। एवरी लोड इन इलेक्ट्रिसिटी लाइक योर बल्ब, यौन मत कर, यौन करना ही नहीं है, हाथ ऐसे दर्द दे दो, मार लो टेबल में, यौन नहीं। यौन मतलब मेरे को कमजोरी आ जाता है, यौन नहीं होना है। सो जाओ, घर से आके खाना खाओ, यहाँ पे टैंग ले आओ, डब्बे में खिचड़ी ले आओ, खाओ, च्युइंगम खाओ, सिर्फ टेबल में लगा के मत जाना वो च्युइंगम। बाकी जो करो आए। कल मेरा 9th के साथ हल्ला हो गया इसको लेके, 5 of them are all yawning, more are girls। यौन नहीं करना है, सोइए हुई, अभी आपकी उम्र नहीं है यौन करने की, ठीक है? चलते हैं, और नहीं तो स्टोरी में घुसिए। अच्छा, दूसरी बात, और अगर यौन होता है ना, उंगली लगा लो, दोनों टेबल है ना, बीच में पेन घुसाओ, दर्द दो, टॉर्चर करो, यौन चला जाएगा। अच्छा, all the devices that we use are also a sort of a resistance, every device is a resistance, okay? और इन्हें हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। जैसे आपने एक बल्ब जलाया तो बल्ब भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, everyone is going to offer some sort of resistance। तो इस सर्किट को देखते हैं, मान लीजिए इसको हम सिंपली 2 बल्ब कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है? ऐसे हमने 2 बल्ब कनेक्ट किए, जस्ट देखो कैसा है। और इस सर्किट में हमने एक स्विच लगा दिया है, और मान लो इसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया है। अब इस सर्किट की ड्रॉबैक क्या है वो पहले देखते हैं, ठीक है? ये सीरीज सर्किट है। इस सीरीज सर्किट में हाउ इज द करंट गोइंग, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विल द करंट ट्रेवल। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे, ऐसे स्विच को ऑन कर दिया, तो करंट यहां से गया, थ्रू द फिलामेंट जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये फिलामेंट, ये करंट को अपना सर्किट पूरा करना है। अगर कोई एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो करंट उस बल्ब तक जाके रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। That was my Diwali project, as I used to say, एक बल्ब फ्यूज तो सब फ्यूज। तो सीरीज कनेक्शन में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक डिवाइस चला गया, आगे के किसी डिवाइस को आपको पावर नहीं मिलेगा, नंबर 1। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या, फिर हम इस सर्किट को यूज नहीं करते? करते हैं, जहां इसकी जरूरत है वहां यूज करेंगे। अब सेकेंड बात आता है कि सिंगल स्विच सिंगल अप्लायंस कंट्रोल नहीं है आपके पास। आप जब इस स्विच को ऑन करोगे, जलेगा तो दोनों जलेगा। समझ में आ रहा है? अभी आप घर में जब बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम का लाइट जलता है, ऐसा नहीं ना कि बाथरूम का स्विच ऑन करते सारे घर का लाइट ऑन हो गया। तो देखते हैं थोड़ा सा पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, ठीक है? लेट्स सी वन पैरेलल कनेक्शन। ये मान लीजिए हमारा एक बल्ब है और ये एक और बल्ब है, ठीक है? अब देखिए इस कनेक्शन में क्या खूबसूरती है। ये सब सीबीएसई बताता नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। अब हमने इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? इसको हम कहते हैं सिंगल अप्लायंस सिंगल कंट्रोल, जो कि हमारे घर पे है। ये मान लो हमारा बेडरूम है और ये हमारा बाथरूम है। जब हम बाथरूम में जाएंगे तो सिर्फ बाथरूम का स्विच ऑन करेंगे, करंट कैसे जा रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, बाथरूम का लाइट तो जल गया। बेडरूम का लाइट मान लो फ्यूज है, कोई मतलब नहीं उससे। सिंगल अप्लायंस सिंगल स्विच। So you will be sometimes asked like what is the advantage of using a parallel connection in a domestic network? Domestic wiring में हम parallel क्यों करते हैं? So the reason is you do it parallel, the first advantage is that you get single appliance single control। और अगर आपने यहाँ पे एक स्विच काट लिया है, मान लो यहाँ पे, this is like the main switch, इसको ऑफ कर दोगे तो किसी को भी पावर नहीं मिलेगा, something like your distribution board। Are you understanding? Is this understood by all? Okay, second, if you see, the overall resistance of this circuit is high. As the resistance is high, high current can't flow through this circuit. In your home, you've got devices like air conditioners, refrigerators, washing machines, geysers, microwave ovens, and then toasters and other things which need high current. But यहाँ पे overall resistance क्या है? Low है। तो हम high current इस सर्किट से चला सकते हैं। ये सर्किट से high current नहीं जा सकता है। ये सर्किट हम देखते हैं दिवाली, क्रिसमस लाइट्स, ये सब में, इसलिए उसके वायर्स भी छोटे छोटे होते हैं।
इसमें हाई करंट जा रहा है। तो सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एट होम नेटवर्क, सीरीज हैज गॉट a high resistance, so the high current circuits cannot be designed. Parallel being a low resistance circuit, high current devices can be connected. Number one, single device, single switch action can be controlled. इसमें single device, single switch नहीं. One device is out of order, does not affect you. तुम्हारे घर में बाथरूम फ्यूज हुआ तो बाकी लाइट तो सभी जल रहे हैं ना. सीरीज में अगर हम आपके घर को कनेक्ट करते हैं तो एक लाइट ऑफ मतलब पूरे घर का सब लाइट ऑफ हो गया है, वो तो बेवकूफी हो जाएगी. और दूसरा चीज देखिए, ये आपके घर में, हालांकि दिस इज नॉट द राइट सिंबल, इन इंडिया वी आर फीडिंग 240 वोल्ट्स, तो इसको भी 240 मिल रहा है, इसको भी 240 मिल रहा है, इसको भी 240 मिल रहा है. तो जो भी आप अप्लायंस खरीद के बाजार से लाते हो, एवरी अप्लायंस इज अ 240 रेटेड अप्लायंस, सो यू कैन कनेक्ट इट एंड प्लग इट इन एनी जैक. ऐसा तो नहीं कि इसको उसी वहीं पे चलाना है, इसको सीरीज में हम वो चीज नहीं कर सकते. ये दो चीज समझ में आया. थोड़ा और एक चीज देखते हैं. ओके, अब इसको ग्राफ में देखते हैं. ये है V, ये है I, और ये है V और ये है I. ठीक है, कितना रहता VI. तो अगर हम दो रेजिस्टेंस हमने लिए थे, कौन से? हमारे वही 100 ओम वाले रेजिस्टेंस थे. तो 100 ओम रेजिस्टेंस को अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आया था? 200 ओम्स. और पैरेलल में किया था तो कितना आया था? 50 ओम्स. यानी कि इनके अगर हम प्लॉट करें, कुछ ऐसा प्लॉट आएगा. द स्लोप ऑफ अ VI ग्राफ टेल्स मी द रेजिस्टेंस, राइट. ऐसे आपको एक ग्राफ दे दिया और आपको पूछ रहा है कि इसको मान लीजिए आपको ग्राफ 1 दिया और इसको ग्राफ 2. विच वन रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट सीरीज, विच वन रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट पैरेलल. इक्विवेलेंट सीरीज इज ऑलवेज हाई रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? R इक्विवेलेंट, ये सीरीज का है, और ये क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट पैरेलल का. लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है. ये है नॉलेज, और ये 3 साल पहले फिनिश ग्रीन में आ गया था ये क्वेश्चन. 3-4 साल था, नहीं 3 साल पहले उन्होंने क्या किया था एग्जाम में, रट्टू बच्चे सब गए गड़बड़, उन्होंने इसको चेंज कर दिया था. IV दे रहा था, इसको कोई किसी ने देखा नहीं, और R. अब लेकिन दूसरा हो जाएगा, ये जो है ना, ये हो जाएगा R सीरीज और ये हो जाएगा R पैरेलल. क्योंकि IV जब आप ग्राफ करते हो तो आपका ग्राफ क्या प्लॉट कर रहा है? 1/R प्लॉट कर रहा है. तो अगर आपका R ज्यादा है तो 1/R क्वांटिटी कम होना चाहिए ना. ये उस क्वेश्चन को 3 बच्चों ने गलत लिख के आ गया था, बिकॉज दे डिड नॉट सी द एक्सिस. दिस वाज देयर, इसी को रट्टू करके गए, ये वाले में फेल हो गए. उसने एक्सिस से, जब भी आप रेजिस्टेंस का आंसर करोगे सबसे पहले एक्सिस देखना क्या दिया है. द एक्सिस शुड ऑलवेज बी, जैसे आप पढ़ते हो ना, इसीलिए मैंने बोला था V इक्वल टू IR, और हम इसको लिखेंगे V इक्वल टू RI. और मैथ्स में क्या पढ़ते हैं? Y इक्वल टू MX प्लस C. तो X में I होना चाहिए, Y में V होना चाहिए. द स्लोप इज द रेजिस्टेंस. C is 0 here because the graph starts from 0. अगर आप वोल्टेज ही नहीं दोगे तो करंट कहां से पैदा होगा? ये चीज समझ में आया? तो 3 चीज याद रखिए. सीरीज और पैरेलल के नेटवर्क में सबसे पहले सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट कांस्टेंट रहता है. वेयरएज इन अ पैरेलल करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है. अच्छा, एक और बात आती है, पिछले वाले स्लाइड में जाते हैं. जैसे हमने ये नेटवर्क देखा, ये नेटवर्क, इसमें हमने क्या कहा? करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सिमिलर है, मान लो ये 50 ओम 50 ओम 50 ओम, देन द करंट विल आल्सो बी इक्वल इन ऑल 3. जाहिर सी बात है ना. तो उसका जीता जागता कैसा रहेगा? अगर ये दो बल्ब सेम रेटिंग के हैं, then the current through both the bulbs will be same, and it will be exactly half of the current of this. Current gets distributed ना, किनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये दोनों बल्ब में, दोनों चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होगा. दोनों चैनल में क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट? इक्वल रेशियो, क्योंकि इनका लोड बराबर है. समझ में आया? इस सेक्शन के बाद आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बनते हैं हमारे किसके ऊपर? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. हम ये सब प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस मतलब आपको 3-4 फिगर दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए. The figure will be done in such a manner that it confuses you.
पर आप क्या करना पता है, सबको ऐसे तोड़ के लिनियरली बनाने की कोशिश करना, ताकि वो सब हम करेंगे क्वेश्चंस में. सो दिस जंक्शन वी आर एंडिंग व्हाट, रेजिस्टेंस. तो V I R अमर अकबर एंटनी तीनों हो चुका है. अगला टॉपिक जो हम देखते हैं वो है पावर ऑफ अ सर्किट. पावर, अगर आपका ग्रेड 9 का पावर का नॉलेज ठीक है तो आप यहां भी करेक्ट कर लोगे. पावर अब सिर्फ क्या है, ग्रेड 9 में आप मैकेनिकल डिवाइसेस के पावर कैलकुलेट करते थे, यहां आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पावर कैलकुलेट करोगे. आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 9 में चलते हैं. ग्रेड 9, ग्रेड 9, ग्रेड 9 में आपने क्या सीखा था? पावर इज द वर्क डन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. तो पावर के दो डेफिनेशंस था, वर्क डन बाय टाइम टेकन और कोई कोई कहता था एनर्जी बाय टाइम टेकन. इन दोनों में फर्क है. कैसा फर्क है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट भी होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड. तो पावर की यूनिट होती है वॉट. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड. अब हम ये दोनों को समझेंगे. पहले वैसे समझाया था लास्ट ईयर, अब फिर से एक बार देखना, इन दोनों को समझना है पहले, फिर पावर के डेफिनेशन में जाएंगे. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेक अ मिक्सर ग्राइंडर. ओके, अ मिक्सर ग्राइंडर. ये हमने एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा है मार्केट से. सो लेट्स से वी हैव अ मिक्सर ग्राइंडर. ऐसे हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है. और ये मिक्सर ग्राइंडर में एक स्टैंप लग के आया है, से दिस इज अ 700 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर. हैव यू अंडरस्टूड? ये हमने अमेज़न से खरीदा है. और इसके साथ साथ किसी के घर में थोड़ा सा बड़ा मिक्सर ग्राइंडर भी है, ऐसा जूस वूस सब निकालता है, ठीक है. तो ये वाला हमारा है 1200 वॉट मिक्सर ग्राइंडर. अब दोनों का डिफरेंस पहले समझते हैं. ये दोनों मशीन है. मशीन के पास कोई एनर्जी नहीं रहता है, मशीन एनर्जी लेता है. तो इसका डायग्राम कैसा होगा? ये दोनों मशीन्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं वायर से. तो ये लोग क्या खा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहे हैं, है ना. दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाते हैं. और दोनों क्या आउटपुट देता है? मैकेनिकल वर्क आउटपुट देगा. इसको भी मैकेनिकल वर्क देना है, मोटर घुमाना है बेसिकली. इतना क्लियर है कि नहीं आप? ठीक है. सो क्वेश्चन अराइजेस, ये जो 1200 और 700 हमें स्टैंप मार के बॉक्स में आया है, तो ये क्या बता रहा है इन दोनों में? ठीक है, इसका फर्क को समझिए. मेकर जब आपको कोई भी स्टैंप मार के देता है, नाउ यू विल से, आपका कंफ्यूजन कहां पे हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, ये एक डेफिनेशन है आपके पास. और पावर का अगला डेफिनेशन कितना है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. अच्छा, क्या बताता है? These devices, they are not telling you when the stamp data is given, the stamp data is not for this. The stamp data is telling you कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा. समझ में आया? ये वाला कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? ये एनर्जी कंज्यूम करता है 1200 जूल खींच लेगा 1 सेकंड पे चलाने से ही. और ये कितना कंज्यूम करेगा? 700 जूल खींचेगा 1 सेकंड में. तो हमें महंगा कौन सा पड़ेगा? इसको महंगा पड़ेगा चलाने में, ज्यादा एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कम ले रहा है. अब फर्क है. तो फिर ये बिकता क्यों है? ये क्यों? अलग अलग काम के लिए. ये ज्यादा एनर्जी लेगा लेकिन आपका बैटर कम टाइम में बेटर पीस के देगा आपको. ये क्या करेगा? चलेगा, ये ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा. अब बात आती है कि इसने कितना लिया? 1200 जूल, है ना. ये क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया, है ना. नाउ इट इज टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क. तो यहां पे कितना वर्क मिलेगा? ये है, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली beneficial for the customer. This is not the information that, but what you get in the what you call device pack is always what is the rating of that device. It is not telling you कितना काम करेगा. तो हम यहाँ पे खुश होके क्या समझते हैं भाई साहब? हम खुश होके समझते हैं कि हमारा मशीन तो कितना देगा? 1200 जूल का काम करेगा 1 सेकंड में, मतलब बढ़िया मैकेनिकल वर्क देगा. लेकिन इतना मैकेनिकल वर्क तो ये देगा नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका हो जाएगा लॉसेस. ये मिक्सी हीट होगा, ये साउंड करेगा, ये सब मिक्सी हीट होता है ना. ये सब कहां से आ रहा है? यहीं से तो लेगा.
अगर आप 5 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी का काम थोड़ी करेंगे, कुछ अपने शरीर को भी तो मेंटेन करने के लिए चाहिए। यहां सवाल आता है एफिशिएंसी का, तो हम एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी। ये सब नहीं जान के पढ़ोगे तो कोई काम नहीं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर कॉल ईटा, एन लिख के बड़ा, ईटा की वैल्यू होती है। एफिशिएंसी सिंपल, ये एफिशिएंट मेड है, ये एफिशिएंट मेड नहीं है। एफिशिएंट मेड कौन है? उतना ही खा के ज्यादा काम करता है, इसीलिए वो एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी में हम हमेशा लिखते हैं कि आपका आउटपुट कितना है ओवर इनपुट। मैंने कितना रुपया लगाया तुम पे, सिंपल मारवाड़ी हिसाब, और कितना मुझे मिल रहा है, एकदम सिंपल हिसाब। अगर 1 रुपया लगा के 1 रुपये का काम करता है तो फिर वो क्या है? आइडियल मशीन, 100% एफिशिएंसी। इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। 1 मिनट, हाँ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। नाउ सी, if a machine takes 10 joules of energy and is able to convert 10 joules of energy to work, then is what efficient? 100% efficient, है ना? Generally इस यहाँ पे हम डालते हैं something called coefficient of efficiency, something like say 0.8, 0.9. 0.9 का मतलब क्या है? अगर मशीन 100 जूल पीता है तो आपको कितने जूल का काम करके देगा? 90 जूल्स का काम करके देगा। ये समझ में आया? तो ये सारे जो डिवाइसेस आप देखते हो, ड्रिलिंग मशीन एंड ऑल, लेकिन एक चीज है, ये काम कम टाइम पे करेगा। अगर ये 1200 खींच रहा है इन 1 सेकेंड, ये डिलीवर भी तो करेगा कुछ 1180 इन 1 सेकेंड। ये कितना डिलीवर करेगा? 640 के आसपास। तो दोनों को अगर हम बैटर पीसने में लगाएंगे, ये अपना फास्टर बैटर पीस के देगा। दैट्स वाई जब आप कंक्रीट ड्रिल को ड्रिल कर रहे हैं, 1 मिनट बोलो बेटा। हाँ जी, आउटपुट और इनपुट। तो जैसे आप ड्रिल कर रहे हो, कंक्रीट वॉल को ड्रिल कर रहे हो, छोटे ड्रिल से ड्रिल करोगे तो क्या होगा? आवाज करेगा, ड्रिल बिट भी गर्म होगा, पास वाले लोग भी गुस्सा करेंगे, ड्रिल नहीं होगा। वहीं आप बड़ा वाला ड्रिल लोगे, वो एक बार में ड्रिल करके दे दे, वो पिएगा ज्यादा, काम भी अच्छा करेगा। So have you got the idea about, see, when we talk about power, in mechanical engineering, if I'm a mechanical engineer, I am always getting the power at the shaft. समझ रहे हो? देखो, एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर का कहां लड़ाई खत्म होता है? इलेक्ट्रिकल वाला हमें फैन चलाना है, एक मोटर चलाना है, और मोटर की पुली के साथ हमारे चक्की के उसको बांधना है। समझ रहे हो? मोटर घूमेगा और हमारे चक्की के साथ हम एक बेल्ट लगाएंगे। हाँ, ये मेरे साथ मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। His job in the company is to see that the motor is running properly. My job is to see how much output. I am least bothered how the motor runs. मेरे को मेरा पुली रन करना है, मीन्स मैं चक्की रन करना है। So as a mechanical engineer, my definition of power will be what? Work done by time taken. कितना वर्क मिल रहा है मुझे? ये क्या बोलेगा? पावर कितना है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, टाइम। और फिर उसमें हमारी एक सुलह रहेगी कि इट्स द एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर बेल्ट ड्राइव दैट वी हैव मेड इज हाउ मच? 80%. सो 100 जूल्स अगर हम ले रहे हैं, हमें कितना मिलेगा पर सेकेंड? 80 जूल्स मिलेगा। ये क्लियर हुआ? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट सर पावर वाज डिफरेंट इन ग्रेट 9। पावर अलग नहीं होता है, पावर एक ही चीज है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क or the rate at which you are consuming energy. We believe that what energy you consume should be the work you should do, because energy can neither be created nor be destroyed, but can definitely be converted from one form to another. जब हमारी मिक्सी चलती है, मिक्सी गर्म भी होती है, आवाज भी करेगी, थोड़ा तो उसमें जाएगा ही जाएगा। और बाकी जो आपको मिलेगा, इसलिए जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं व्हाट इज यूजफुल वर्क, व्हाट इज लॉस वर्क। ये लॉस निकल गया ना, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। यूजफुल वो है जो अल्टीमेटली उस चक्की को घुमा रहा है। लेकिन पैसा किसके लिए दोगे? बंगालियों के लिए हिसाब बड़ा सुंदर है। पूरा मछली का पैसा लेता है फिश वाला, काट कुट के मछली का बहुत सब जाता है, अल्टीमेटली घर में कितना लाओगे? मछली का वेस्ट भी तो जाएगा ना। इफ यू बाय अ होल चिकन, यू डोंट ईट द चिकन, यू विल ड्रेस द चिकन, थ्रो आउट व्हाट यू डोंट ईट। तो 1 किलो चिकन खरीदने से घर में कितना आएगा? 700। So in a fish market you'll see very elderly people, जो सब मतलब जिनके पास बहुत टाइम रहता है, पूरा मछली चिकन खरीदने के बाद जब ड्रेस हो जाता है ना, वो दुकानदार को फिर बोलेगा एक बार फिर तोलो। अभी उसमें कुछ नहीं है, उसने पैसे इसी के दे दिए हैं, लेकिन उसमें उसको संतुष्टि मिलती है कि मैंने 2 किलो मछली खरीदा, घर कितना लेके जा रहा हूँ? 1 किलो 600 या 1 किलो 700। 300 कहाँ गए?
मछली को शेल वेल डिशेल स्केलिंग। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, तो बड़ा इजी है, आप एक बार में निकाल सकते हैं। पावर इज वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क का बता दो बेटा, वर्क का डेफिनेशन क्या था? हाँ, फोर्स। तुम मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो, यही तो समझ गए ना। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। तन्ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल की बात करो। तो वर्क की बात कितनी हो गई? वी क्यू बाई टी हो गया। भाई साहब ये चीज पहचान में आ रहा है, ये कोई नहीं, ये तो करंट है। तो पावर कितना हो गया? ये पीटूंगा पकड़ के ना वोल्टेज का। वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज नहीं होता है क्या? यस सर, आज सुबह पहले तो वही लिखवाया। तुम्हारा भी वही हाल हो रहा है। 9th को पढ़ाने के बाद पूछते हैं सर वो पूरा पढ़ा लिया कोऑर्डिनेट, सर ओरिजिन 0 होता है ना? ये सवाल आ रहा है आजकल मुझे। एक लड़का कल कह रहा है सर एटम थ्योरी तो है ना। मैं क्यों? नहीं, क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे एटॉमिक थ्योरी। आई एम लिटरली हैविंग बीपी विद दैट बैच। ये समझ में आया? अरे 9th इज अ पेन। 9th का जिस दिन क्लास होता है मुझे टेंशन हो जाता है। आज नहीं, कल था। ये समझ में आया डेरिवेशन? तो ये आपका नया फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल टू वी आई। ये हो गया इसका पेरेंटल फॉर्मूला। अच्छा, मैं ऐसे भी लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने? v को गायब कर, v बाई आई क्या होता है? r होता है ना? तो v की वैल्यू कितनी हो गई? आई आर। आई आर को आई के साथ करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। सर पावर जो होता है ना वो वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। ये कैसे हो गया? आई को गायब कर, आई की वैल्यू कितनी हो गई? v बाई आर। यहां से आई की वैल्यू है वो आई की जगह पे डालो। एक बार आई को गायब करो, एक बार v को गायब करो। मजो आ रही हो? अभी इलेक्ट्रिकल समझ में पढ़ रहे हो? हाँ, इतना इजी नहीं है जितना सोच रहे हो। तो चलो अगर इतना हो गया फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज, करंट होता है चार्ज बाय टाइम। ओम बाबू क्या कह गए थे? आर। इसके बाद आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। आर सीरीज कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। और इसके बाद एक और चीज होता है R पैरेलल। ये बार बार लिखते जाओ, कोई खराबी नहीं है। इसमें कितना होता है? 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 1 बाई RN। ये भी आपने सीख लिया। ठीक है, हायर क्लासेस में कैसे देगा ये प्रॉब्लम पता है? The resistance in a circuit follow a geometric series in which there is a common difference between the value of the resistances। ऐसे भी आएगा ना, ये geometric series ही तो है। अगर हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 9 ओम, हाँ दिवांशु, इसमें भी एपी घुस गया। चले, फिर आपने क्या सीखा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, सेम एज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। कंफ्यूज मत हो ना, एक ही चीज है। ठीक है ना? पावर क्या हो गया? वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। मजो आयो? अभी और है, अब और 1-2 और फॉर्मूलाज है, उसके बाद खत्म। याद रहेगा तो एग्जाम तक। हमको कैसे याद रहता है, आपको भी याद हो जाएगा। चलें? कैन आई गो टू व्हाट? टेल मी। हाँ हाँ बोलो बेटू। Can you go back to the previous slide? ये बोलो क्या चाहिए यहाँ पे? वी स्क्वायर बाई आर। इसको देखो बेटू, बड़ा इजी है। पावर इक्वल टू वी आई। एक बार v को गायब करो, एक बार i को गायब करो। v को गायब करने के लिए ओम अंकल को याद करो, v अपॉन आई इक्वल टू आर। v की वैल्यू क्या हो गई? आई आर। तो v की जगह पे आई आर और ये एक और i, तो हो गया आई स्क्वायर आर। अगली बार में i को गायब करेंगे, फिर ओम अंकल को याद करो, i क्या हो गया? v अपॉन आर। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? पावर इक्वल टू, इस बार हम i को गायब कर रहे हैं तो ये v और इस i की जगह पे v बाई आर। तो ये कितना हो गया? v स्क्वायर बाई आर। इतना ही आसान।
समझ में आया? अब डन? अब कुछ और नहीं, कुछ और सीखना तो है। चलिए चलें आगे, चलते हैं। अब आ गया है हम, अब ये वाला सेक्शन आ जाता है कमर्शियल, ये ठीक है। तो एनर्जी की बात करते हैं हम। यहाँ चैप्टर में हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा? एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी जो है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है जूल। चाहे आप मैकेनिक्स पर हैं, आप फिजिक्स पर हैं, आप इलेक्ट्रिकल पर हैं, एनर्जी तो जूल है, ठीक है ना। और ये है आपका सुंदर सा घर, ये आशका मैडम का घर है, सेरिन काउंटी एलएनटी में उनका घर है, ठीक है। इसमें तरह तरह के बिजली के उपकरण हैं और ये घर बिजली खींच रही है। अल्टीमेटली व्हाट आर दे बाइंग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप खरीद रहे हो, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना। जो आप कहते हैं ना लाइट का बिल चुकाना, तो क्या चुका रहे हो आप? बिजली, ऊर्जा जो आप खरीद रहे हो, उसी एनर्जी का पैसा आपको देना है। सो दिस पार्ट डील्स विथ अ डिफरेंट एस्पेक्ट दैट वी कॉल एज द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल मतलब यहाँ रुपए पैसे की बात आ गई। सो जब हम कमर्शियल में एनर्जी को देखते हैं वर्ल्ड वाइड, तब इसकी यूनिट जूल नहीं होती है, ये और एक झमेला है। इसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और चालू भाषा में इसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और भी अगर आपको एकदम घर के मुकेश भाई की भाषा में चाहिए, ये बेसिकली आपकी है यूनिट। सबके मुंह में सुना होगा बिजली की यूनिट काफी महंगी हो गई है आजकल। अभी बिजली पहले 7 रुपए आती थी, अभी 10 रुपए यूनिट हो गई। तो जो यूनिट की बात कर रहे हो ना, ये यूनिट इज द लोकल मैन्स लैंग्वेज अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट ही इज बाइंग। इसलिए यहाँ पे कमर्शियल आ गया। अगले वो इस सेक्शन में जो भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें रुपए पैसे का कारोबार होगा। समझ में आ रहा है? और इससे आप अपने घर की बिजली की भी जो आपको बिल आता है ना पीसीओएस से, उसको भी आप इंटरप्रेट करना सीख जाओगे। अभी अगले 15 मिनट में आप सीख जाओगे। तो सीखते हैं, उसमें हम यूनिट जूल्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड द यूनिट इज नॉट जूल्स, वी हैव अ सेपरेट यूनिट एंड दैट यूनिट इज नोन एज, पहले इसको समझो, किलो वॉट आर। इसको हम बोलते हैं KWH बोलते हैं, के स्मॉल में है किलो वॉट आर। इसकी यूनिट क्या है? जूल नहीं है, किलो वॉट आर। अब रुक जाओ, साथ साथ लिखो मत यार, मैं समझो ना, पहले नया चीज सीख रहे हो यार। यहाँ सांप बना देंगे तो सांप ही लेके ला लोगे तुम लोग, करेंगे किसी दिन तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या पता किलोवाट यूनिट क्या है? जो लिख रहा हूं वही लिख रहे हो ना, क्या लिखो? किलोवाट आर। और इसमें जो चीज होता है ना, वो है सीरीज में इस चीज को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और साथ में पैरेलल में हम इसको भी कनेक्ट करते हैं। लिख लो नोट्स लिख लो। सीरीज में इसको लगा के इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों नहीं लिख रहे हो? समझ में आ गया? मैं यहाँ कुछ कैपेसिटर लिख दूं तो लिख लोगे ना फिर? तो इलेक्ट्रिकल फील आएगा ना। ट्रांसड्यूसर लिख दो, LDR लिख दो। ये सब स्कूल में करना है, वहां ये सब बताते नहीं यार। कोई बता रहा है, मजे लो ना। किलोवाट आवर पहले चेक तो करो कि क्या ये एनर्जी सही में है या कुछ और है। अच्छा, किलो का मतलब क्या होता है भाई साहब? 1000। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल ओवर सेकंड, है ना। और आवर का मतलब कितना हो गया? 3600 सेकंड। लिख सकते हैं, सेकंड ने सेकंड को काट दिया। भाई साहब आंकड़ा जो भी हो, यूनिट क्या है? जूल। तो ये तो एनर्जी बता रहा है। सबसे पहले दिल में वो तसल्ली रहेगी, क्या ये एनर्जी बता रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा। देखो अब नहीं लिख रहे थे ना, तुम ही नहीं बोला। एनर्जी बता रहा है, लेकिन हायर वैल्यूज ऑफ एनर्जी बता रहा है। समझ में आया? अगर हम जूल्स में आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं ना, तो आपका महीने का, अभी जैसे हम लोग महीने में कंजम्पशन कहते हैं, यार इस साल ना AC चल रहा है, 700 यूनिट आ गया है, 700 यूनिट। उसी को अगर हम जूल्स में करके आपको देते हैं ना, तो ऐसे ही टेबल में लड़ाई होती है। और भी होता है, यार इस बार हमारा ना 2 × 10⁻86 आया है, 10⁻44 हमारा जूल्स आया है। जूल्स ये क्या, जूल ये पता नहीं इसमें क्या झोल झाल किया है जूल के साथ। तो हम लोग किस में बात करते हैं? KWH में। और ये KWH का मतलब होता है एक यूनिट। तो ये पहला चीज तो पता हो गया कि ये जूल को ही मेजर कर रहा है। तो जरा सा कॉम्बिनेशन देखते हैं। 1 KWH इज इक्वल टू
K की जगह पे हमने कितना लिखा 1000, W की जगह हमने क्या लिखा जूल्स ओवर सेकेंड, और आवर की जगह हमने कितना लिखा 3600 सेकेंड। सेकेंड ने सेकेंड को काटा, ये बना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। एक kWh यानी कि देसी भाषा में एक यूनिट इतना जूल्स होता है। बात समझ में आई? अब इसका फीलिंग लेंगे। अब कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं रुकता हूं। समझ में आया एक यूनिट क्या होता है? एक यूनिट ये पहले क्लास 9 में था, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। हाँ, फिर तुम लोग प्यारे बच्चे बन गए ना, तो सिलेबस में हटा दिया गया, अब ये 10 में पढ़ाते हैं। सिलेबस में कहा था? नहीं था, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं था। हम लोग को क्या लिखा हुआ अच्छा, मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी बुक में नहीं है। KWH इज नाउ इन ग्रेड 10, और तुम्हारा स्कूल तुम्हें पढ़ा रहा है वो अलग बात है, चिरागदीप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हो तुम। तो क्या पता चला, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एनर्जी को एक यूनिट में मेजर करता है, बिकॉज एवरीवन्स कंजम्पशन इज ह्यूज। उसको अगर हम जुल्म एक कुछ कुछ मोल की तरह है, जैसे अगर हम बोले 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब 6.022 × 10⁻23, उतना ये वैसे ही कुछ है। ठीक है, अब इसका फीलिंग लेते हैं। फीलिंग्स लेना है, रेडी है फीलिंग्स लेने के लिए? ये फीलिंग्स लेते हैं। फीलिंग्स क्या है? फीलिंग लेने के लिए आज हम किसको बलि बनाते हैं? आज हम अक्षत को बलि बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा अक्षत, ठीक है, प्यारा सा, हमेशा ऐसे रहता है, हंसता है, पर थोड़ा सा तो एल है। एल का मतलब समझो ना, एंड होता है वर्ड वाई से, 4 लेटर वर्ड है, एल से शुरू होता है, वाई से एंड होता है, बीच में ए और जेड आता है, तो थोड़ा सा तो है। अब इसका वही प्रकोप हम देखेंगे। ये भाई साहब सुबह जो है ना अपना कपड़ा खुद प्रेस करते हैं, ठीक है, ये अपना कपड़ा खुद प्रेस करते हैं। तो इस कपड़े को प्रेस करने के लिए इनके घर में एक आयरन है। फीलिंग लो पहले, फीलिंग। और ये आयरन बजाज का आयरन है। ये आयरन है 1000 वॉट का आयरन है। समझ में आ रहे हो? और आयरन में आप देखते हो इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट रहता है। जैसे आपका आयरन हीट होता है, लाइट जलेगा, फिर आयरन चलाए हो कि नहीं? देखे हो? नहीं देखे हो तो उसी से छौंका लगा देंगे शरीर में। इतना भी मतलब आयरन नहीं देखा है ना, तुम यहाँ पे आना अगले दिन, वहीं पे पीछे से पैंटवा नीचे करके 2 ऐसे दे देंगे ना, हीमैन का हिसाब। फिर तुम बोलोगे आयरन नहीं सर, मुझे तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया। फिर घर में जाके ना बैठ पाओगे ना सो पाओगे। और मजा क्या है उसके बाद, किसी को बोल भी नहीं पाओगे कि कहाँ चोट लगा है, क्योंकि तुम तो बड़े हो चुके हो। यार ट्रिपल एक्शन हो गया इसमें। खाली जब भी चलोगे ना थोड़ा सा हाथ ऐसे करके चलोगे, जिंदगी भर याद रहेगा। 3 इडियट की तरह, ही मैन है, ही मैन। अच्छा, आयरन नहीं देखा है, नहीं छुआ है ना, इसलिए क्योंकि तुम्हें आयरन छूना पता नहीं ना। मैं उन्हें से सीधा लगा देता, ज्यादा नहीं कुछ, जलोगे मेट प्लस में बर्नॉल मिलता है, लगा लेना, ठीक है। ये 1000, सो इलेक्ट्रिक आयरन जब हम खरीदते हैं, इट इज बॉट ऑलवेज बाय इट्स वॉटेज। ये 1000, इसमें क्या होता है, ऑटो कट रहता है। जैसे ये हीट हो जाता है या फिर कट कर देता है, कट कर देने से दैट टाइम इट इज नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। पर मान लो इसके घर में पुराने स्टाइल वाला है, नॉन ऑटो कट वाला है, नॉन ऑटो कट। ये सब किसके पास दिखते हैं? धोबी के पास जो आयरन होता है ना, उसमें ऑटो कट नहीं रहता है। मीन्स हाँ, कोयला, तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तुम क्यों कोयले के आयरन लेके आ रहे हो? Do you want that I should ask you to serve water to everybody in the class, do cleaning of windows and all while the class? I will not turn you out of my class. I will humiliate you such that you feel कि आप इस क्लास के योग्य नहीं हो। पानी वानी लाओ सबको, किसी को पानी चाहिए, ट्रे में पानी लाना थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आयरन की बात हो रही है, 1000 वॉट तुम कोयला जला के तुम एक गलत लड़का लिया। अच्छा, इसके घर में ना एक हमने पोछा मारने के लिए अक्सर रखा, ये आतिश को हमने पोछा मारता है ये इसके घर पे, ठीक है। अभी ह्यूमिलेशन आ रहा है ना, पोछा मारने के लिए ये है। ये नॉन ऑटो कट है, ठीक है। नॉन ऑटो कट मतलब इट गोज ऑन हीटिंग। नाउ सी द फीलिंग्स, व्हाट इज द फीलिंग? अब ये बच्चा लेजी है ना, ये 6 बजे सुबह अपना कपड़ा आयरन करने के लिए स्टार्ट करता है, ठीक है। पूरा मूड का सत्यानाश कर देते हो। 6 बजे से इसकी मम्मी चिल्लाते रहते हैं, हुआ हुआ, हाँ कर रहा हूं। ये 7 बजे तक ये आयरन को यूज करता है। तो इसने 1000 वॉट के आयरन को कितने देर तक यूज किया? 1 घंटा यूज किया।
और इस 1000 वॉट को हमने और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट लिख सकते हैं और 1 आवर लगा सकते हैं। ये हिसाब समझ में आया? लड़के ने 1000 वॉट 1 घंटा चलाया इज सेम एज 1 किलोवाट 1 घंटा चलाया, तो इसने कितना बिजली खा दिया, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब ये मालपुए की तरह खा गया ये लड़का। अब फीलिंग लो, ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारे पेबल सिटी में रफली आपको 8 रुपए के आसपास चार्ज होता है। तो इसके ये टी शर्ट और कपड़े प्रेस करने का खर्चा कितना आया, 8 रुपया। और अगर इसका लक बैड लक है और उस दिन उस वक्त डीजी चल रहा है, तो डीजी में 1 यूनिट लगभग 45 रुपए के आसपास आता है। डीजी इज वेरी कॉस्टली बिकॉज यू आर बर्निंग डीजल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वही इसलिए आप आज घर जाके अपना बिल देखना, वहां पे 2 इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग रहेगा। एक है मेन पावर फ्रॉम तेलंगाना गवर्नमेंट, वन इज डीजी। डीजी में जितना यूनिट्स होगा ना वो डीजी के रेट से मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो मान लो हमारे अक्षत साहब 30 दिन कपड़ा करते हैं, तो एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है, 1 यूनिट। 30 दिन में कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 30 यूनिट्स। इसमें मान लो 30% ऐसे दिन हैं जब पावर नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो 30% बोले तो कितना हो जाएगा इसका, 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स। ठीक, तो 33% इज 1/3 इज 10 यूनिट्स, 9 यूनिट्स। तो 30 नहीं, हम इसको 33 कर देते हैं। 33.33 इज रफली 1/3 ऑफ इट, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स उसका बिल होता है डीजी के रेट से। तो भाई साहब का कितना आ गया, 450 रुपए डीजी का देगा, और बच गए कितने, 20 यूनिट। 20 का कितने का करके देगा, 8 रुपया करके, यानी कितना, 160। इन दिनों उसको फील होगा कि उसने अपने ड्रेसेस हयात या पार्क से प्रेस करवा के लाया है। महंगा है ना, समझ रहे हो? सो इफ यू आर मेकिंग योर मॉर्निंग इडली चटनी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी विच इज थ्रू डीजी, ऑल्दो यू आर ईटिंग इट एट होम, बट द फीलिंग इज लाइक वो ताज कृष्णा से बन के आया है आपका, क्योंकि वो महंगा है। ये तो छोटे मोटे डिवाइसेस हैं। अब जो तुम्हारी आदत हो गई है ना रात को ऐसे लेके खराटे मारने की, और ऊपर एक ऐसा चीज चलता है ना तुम्हारा एसी, उसका नहीं सुनना चाहोगे? वो कितना कंज्यूम करता है? दैट कंज्यूम 1 TR वाला जो एसी है ना, वो कम से कम 1 घंटा में 3000 वॉट के आसपास कंज्यूम कर रहा है। 3 से 4000 मीन्स 4 यूनिट्स पर आवर। एसी भी कटकुट करता है। तो अगर आप रात 10 बजे भी एसी चलाते हो, 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी तो रात जवान है, 7, 8, 9, 10 बजे मैं करवट लेके उठता हूं, 13 घंटा आपका एसी चला। 13 घंटा में जस्ट सोच लो फीलिंग्स, 13 घंटा में मान लो 70% आपका कंप्रेसर चलता है, बाकी कट भी तो करेगा ना, एसी तो कट भी करता है ना। 70%, 13/5 का कितना हो गया, 6.5। ये 6.5 गर्मियों के दिन में हो रहा है जब खूब पावर कट होता है। तो मान लो इसमें अनदर 30%, यानी कि 3/6 कितना हो गया, 18, अराउंड से 1.8, 2 यूनिट्स आप पकड़ लो, आप डीजी में चलते हो, और बाकी का कितना है, 4.5 यूनिट आप गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी में चल रहे हो। भाई साहब ये एक दिन का खर्चा है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम तो अलग अलग रूम्स में ना अलग अलग एसी चलाते हैं। और वही ड्राइंग रूम में जो दाब देते हो ना 2 टन वाला एसी, वो इसका बाप है, इससे ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और कुछ कुछ तो है सर, मैं ना क्लास भी अटेंड करती हूँ ना आपका घर से, तब भी मुझे एसी चाहिए, तो शाम से एसी चल रहा है तुम्हारा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ यू गेटिंग द फीलिंग। यहां खत्म नहीं होता है। इसके बाद कभी कभी आपके पापा या कोई आपकी मम्मी गाड़ी रोकती है, मम्मा गाड़ी ना आप चले जाओ, मैं ना गाड़ी में ही बैठा रहूंगा और रहूंगी, मैं ये एसी ऑन करके जाना। नाउ यू आर रनिंग द कार एसी यूजिंग पेट्रोल और डीजल। दैट इज द वर्स्ट एफिशिएंट डिवाइस। एक गाड़ी की इंजन की एफिशिएंसी होती है हार्डली डीजल इंजन की समथिंग अराउंड 40 के आसपास, 40% उससे ज्यादा नहीं होता है। मतलब 100 जूल्स में वो ब्रेक को कितना देता है, सिर्फ 40% देता है। उसमें आपने एसी का कंप्रेसर ऑन कर दिया है। तो समझ में आ रहा है वो एसी कितना कॉस्टली है? तो अगली बार से ये जरा हिसाब अपने मन में रखना।
how to understand how much power you are burning. The simple way to, but even in right now the load that we are, this all connected, there's an energy meter right beside our inverter also. It can calculate how much kWh, उसमें है kWh. आज का क्लोजिंग रीडिंग ले लो, कल का ले लो, तो एक क्लास में कितना पावर कंज्यूम हुआ उसमें आ जाएगा, एक्सेप्ट दिस बोर्ड, बिकॉज़ द बोर्ड इज कनेक्टेड विद दिस, अदरवाइज दीज लाइट्स एंड ऑल आर कनेक्टेड टू दैट. उसको मैंने लगाई है उसके लिए, ताकि वो हमारा एनर्जी कंजम्पशन मेजर कर सके, वॉटेज मेजर कर सके. क्या आपको ये समझ में आया? फीलिंग समझ में आई? अब इसको लेके किस टाइप के हम प्रॉब्लम्स या ये देखते हैं, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं. मान लीजिए एक हाउस होल्ड लेते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे. अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं, सर अगर एग्जाम में पावर कैलकुलेट करने दिया, हम जूल्स में आंसर लिखेंगे या किलोवाट आवर में? अगर वो प्रॉब्लम कहीं भी पैसों का हिसाब कर रहा है तो किलोवाट आवर, वरना हम जूल्स में, क्योंकि इसके बाद वाले सेक्शन में आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. करंट से आप हीट पैदा करोगे, हीट इज एनर्जी, देयर वी विल बी मेजरिंग इन जूल्स. तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. एक हाउस होल्ड होगा, इस हाउस होल्ड में क्या क्या हो सकते हैं बेटा? ट्यूबलाइट्स हो सकते हैं. ट्यूबलाइट्स कैसे होते हैं? 20 वॉट के ट्यूबलाइट हैं, 4 ट्यूबलाइट, ठीक है. और कितना हो गया? 80 वॉट. और बोलेगा ये 5 घंटा चलता है रोज, तो कहता ना 5 घंटा, और ऐसा 1 महीना चलता है. कौन बता पाएगा इसका एनर्जी कंजम्पशन? 80 वॉट 5 घंटा प्रतिरोज चलता है. ये जैसे हमारे 5 लाइट जल रहे हैं, 30 दिन चलता है. लेकिन एक चीज आपने नहीं किया, 1000 से डिवाइड कीजिएगा, kWh करना है. तो हमारा kWh कितना आएगा इस बार? 80 इंटू 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1000. 0 ने 0 को काटा, 0 ने 0 को काटा, 5 ने 2 से काटा, 2 ने 4 से काटा, 4 तिया 12. तो 12 kWh ट्यूबलाइट भाई साहब खा गया. और इलेक्ट्रिशियन के लैंग्वेज में क्या बोलोगे? 12 यूनिट, ठीक है ना. इस तरह से ये क्वेश्चन में आपको देगा. इसमें कुछ फैंस होंगे इस घर का, फिर बोलेगा एक पंप सेट है. किसान भाइयों सुनो सुनो, एक पंप सेट भी लगा देगा, एक टीवी लगा देगा. तो ऐसे करके आप घर का पूरा क्या निकाल लोगे बेटा? व्हाट इज द नेट kWh दैट द सेतानवास रिसाइडिंग इन दिस हाउस इज कंज्यूमिंग. फिर आपको बोल देगा कि इस शहर में द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग बिल्ड एट. वैसे सीबीएसई बड़ा घटिया वटिया डेटा देता है. 3 रुपया को इलेक्ट्रिसिटी देना, मैं सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी वो चलाऊं, एसी चलाऊं. वो पता नहीं 1980 का रेट देता है. आजकल का रेट हुआ 10 रुपया 8 रुपया के आसपास. और कैम्ब्रिज के बुक्स में रहेगा सो मेनी सेंट्स. ब्रिटिश में है ना, यही प्रॉब्लम कैम्ब्रिज में भी कराना, उनका सेंट्स में रहेगा. और तुम लोग उतने भाग्यवान तो हो नहीं, तो हमारे देश में रहोगे. पंप सेट. वो लोग क्या बोला? मारिया इज फ्राइंग अ टोस्टर, an oven. तुम्हारा क्या रहेगा? कछुआ छाप, ऑल आउट, पंप सेट. औकात की बात है ना. तो इसका दाम रहेगा, बोल देगा से ₹8, क्योंकि तुम सीबीएसई वाले हो तो तुमको तो और डिस्टर्ब करेगा. 50 पैसे पर यूनिट आपको बोल देगा. तो आप निकाल पाओगे पूरा kWh निकालिए, और उसको 8 रुपया 50 से. इसमें जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो अंगद जैसे रहते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं प्रॉब्लम देके, मेरे को तो आता है. और ट्यूबलाइट देख के ले लेगा 80 वॉट इंटू 5 घंटा. हम कहते हैं भूतनी का बाकी दिन रोशनी नहीं चाहिए तुम्हें, 30 दिन का जलता है, वो 30 छोड़ देगा यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया. और 30 लेने के बाद ये 1000 को भी भूलेगा. तो आपको कंजम्पशन किस में मेजर करना है? किलोवाट आवर. हाउ मेनी किलोवाट्स एंड कितने घंटे आप चला रहे हो. ऐसे सारे अप्लायंसेस हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्या निकलेगा? नेट किलोवाट आवर. समझ में आया? तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स करेंगे. तो ज्ञान इस पार्ट में, पावर में 2 ही ज्ञान आता है. पावर ऑफ अ सर्किट आपको कैलकुलेट करने बोलेगा तो पावर. सुनिए एक और बात, पावर is always in watt. Kilowatt hour is not power, it is energy. Please understand. Kilowatt hour, ऐसे ही सोच लो ना, किलोवाट, किलो क्या है? स्केलर है, एक मल्टीपल है. वॉट यहां तक पावर है. जब आप यहां पे ये चीज लेके आ गए तो ये एनर्जी बन गया, और इसी को इस साइड में ले गए नीचे तो पावर बनेगा. अच्छा, किलोवाट मतलब 1000 वॉट, मेगावाट मतलब 10 to the power 6, ठीक है. मिलीवाट मतलब 10 to the power -3.
इसके बाद वाला सेक्शन जो हमारा आता है उसमें कुछ नहीं, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद वाला सेक्शन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने आपको बताया था शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट, केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक होता है हीटिंग इफेक्ट। किसी भी कंडक्टर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कंडक्टर के अंदर तो एक रेजिस्टेंस होता है ना। आपके घर में मम्मी पापा को बोलेंगे जाओ रत्नदीप जाओ, जाओ रत्नदीप जाओ, अंदर जिद पैदा हो जाता है ना तुम्हारे अंदर, क्यों बार बार मुझे ही बोला जाता है। तो व्हेनेवर current is flowing through a conductor, it is facing resistance which is like bombarding with the electrons are bombarding with each other, तो heat develop हो जाता है। so any current carrying wire, जैसे हमारा एक वायर है, इस पे अगर हम करंट पास करवाना शुरू कर दे तो ये वायर हमारा हीट होना शुरू कर देगा। अब ये सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ये सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये हीट हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। सबसे पहले बनेंगे हम क्या, सबसे पहले हम बनेंगे एहसान फरामोश सेल्फिश इंसान, जो ये हीट को काम में लगाएंगे। टोस्टर, गीजर, है ना। और एक बहुत बढ़िया चीज होता है, 1 मिनट सुन लो मजा आ जाएगा। तुमने वॉर के मतलब ये सब, ये जैसे ये राजपूत मुगल ये सब वॉर के मूवीज देखे होंगे ना, जहां खूब लड़ रहा है महाराज या कोई भी शहनशाह लड़ रहा है, तो दूसरे साइड का कोई ना कोई एक सिपाही जो ना उस शहनशाह या महाराज के ऊपर पूरा निशान लेके तीर लेके बैठा है पीछे से मारने के लिए। महाराज को लेकिन पता नहीं है उस वक्त, तभी देखना एकदम बढ़िया सा एक सैनिक आके महाराज करके आके वो तीर खा जाएगा, देखे हो, और महाराज का जान बचा देता है। ऐसा एक सैनिक आपके घर पे है, उसका नाम होता है फ्यूज। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। हालांकि ये सब चीज आर एटलीस्ट 15 years old concepts which they teach in CBSE। आज के जमाने में कोई फ्यूज यूज नहीं करता है, काफी आगे आपकी क्या हो गई है, टेक्नोलॉजी हैज गॉन, बट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक तरह का वायर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा एक फ्यूज वायर है, और यहां से ये फिर जा रहा है, और किसी एक कॉस्टली, मान लो यहाँ पे आपका सोनी ब्राविया टीवी है, बिलायत से खरीद के लाए हो, कस्टम्स ड्यूटी दे के 2-3 लाख का टीवी है आपका। तो मान लो यहां से कभी हाई करंट जाना शुरू हो गया, किसी कारण से हाई करंट हैज कम ड्यू टू सम शॉर्ट सर्किट और समथिंग, तो हाई करंट तो जाके तुम्हारा पूरा इसका डोसा बना देगा तुम्हारे टीवी का। उस वक्त ये जो फ्यूज है ना, ये महाराज करके इसके अंदर हीटिंग आ जाएगा, इसको हीट डेवलप हो जाएगा। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसको हम कैसे डिवाइस से, कैसे मटेरियल से बनाएंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। जैसे इसको हीट आ जाएगा ना, ये महाराज करके मर जाएगा। और महाराज कौन है, ये तुम्हारा टीवी है, ये बच जाएगा। आजकल इसकी जगह पे हम एमसीबीज लगाते हैं, ट्रिप्स लगाते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करेंगे, फिर कुछ डेमोज भी देखे तुमको दिखाएंगे। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, then we will take up questions directly from books, and every question we will discuss the concept and we will do. You need not be afraid at all. You might be thinking now, sir सारा फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, आपने सब पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल नहीं किया। पहले सब एक बार पढ़ लो, इसको 3 बार पढ़ेंगे, एक बार सब कुछ जान लो होता क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम्स अपने आप बनते जाएं। आपसे पहले वाले बैचों ने किया है, आप भी करोगे। अनलेस एंड अनटिल यू डू सम बेवकूफ लाइक मिली को नहीं लिया, वॉट को किलो में कन्वर्ट नहीं किया, आवर को सेकंड में सेकंड ही छोड़ दिया। कोई आपको बोलेगा दैट इट रन्स फॉर 30 मिनट्स, दीपांशु भाई साहब 30 मिनट्स लेके करेंगे, नहीं, फ्रैक्शन में ले लो, हाफ आवर, क्योंकि फाइनली हमें क्या करना है, किलोवाट आवर करना है। आई बात समझ में? तो आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ हो। और तू अगली बार से एक बेतुकी बात किया ना, मैं बाय गॉड कह रहा हूं, मैं ट्रे ले आऊंगा और कुल्लर लेके आऊंगा, सबको तो ट्रे में कुल्लर में पानी बांटेगा यहाँ पे। हाँ, पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल आयरन कोयले से जलाता है, कोयला दे देंगे पॉकेट के अंदर, कोयला तेरे पैंट में, तो समझ में आएगा।